Welcome students in the second video of chapter 11 in science for class 7 soil. Myself Sanjay Kumar Gupta, maths and science teacher in St. Michael's Academy, Bethiya. And in this video we shall learn about layers of soil. In previous video we have known that how does soil form, what is its importance, and how it affects our life. Now in this section we shall know that our soil is divided in 4 layers, which is found on our earth, and these 4 layers are categorized as horizon A, horizon B, horizon C, and horizon D. Horizon A, as it is said, topsoil is most important layer for living organism as green plants and some of the rodents as well as insects who make their home. And green plants grow in this layer because they get minerals from this layer, as this layer is soft, porous, and humus rich inside. So we find that this layer is most profitable for plants to grow, while in B horizon, whose subname is subsoil, it is harder than topsoil, humus like and mineral रिच सोइल। यानी इस स्तर में जो मिट्टियां होती है वह टॉप सॉइल की अपेक्षा अधिक कठोर हो जाती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन खनिज की मात्रा अधिक हो जाती है। While in C horizon, cracked and small lumps of rocks are means this is the layer where the topsoil as well as subsoil had been suppressed and they got heavy pressure as well as temperature and they changed into hard rocks. While in D horizon, which is called bedrock, it is the hardest rock due to getting heavy pressure. Since it is called parent rock, means in this part the soils converted in the hardest part and they look like rocks. They are completely non-porous and they do not allow water to rinse. As you know that soil get pressure and they are deposited one after another. हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मान लो कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर एक ट्रक मिट्टी लाकर डाल दी जाए तो हम पहले और दूसरे दिन क्या पाते हैं कि वह मिट्टियां बहुत ही हल्की, सॉफ्ट और आसानी से उड़ा ले जाने लायक या उठाने लायक है। लेकिन अगर हम उन मिट्टियों को कुछ समय तक छोड़ देते हैं, 4 या 5 दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि अब वह मिट्टियां
जो काफी जगह में फैले हुए थे, सॉफ्ट थे, अब वह धीरे धीरे कठोर होते जा रहे हैं। एंड व्हेन वी जस्ट पुट अ हेवी प्रेशर ऑन दीज soil, just they mix with the surface and a slight height can be seen in that surface where they have been kept. Now, this time we find that the soil are much harder than earlier. यानी अब वो मिट्टी जो आसानी से हम उठा लेते थे, एक जगह से दूसरे जगह रख देते थे, अब उसको उठाना आसान नहीं है और हमें उन मिट्टियों को निकालने के लिए किसी नुकीले चीज का प्रयोग करना पड़ रहा है और काफी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वह मिट्टियां प्रेशर पाकर अब अधिक कठोर हो गई है। ठीक इसी तरह से जब प्राथमिक मिट्टी तैयार होती है हमारे वातावरण में, तो वह काफी भुरभुरी, हल्की और ह्यूमस रिच होती है। बट जब उसके ऊपर दूसरी मिट्टी की परत आती है तो पहली वाली परत नीचे चली जाती है, और इसी तरह से जब एक और नई परत आती है तो अब जो पहले वाली परत थी अब वह तीसरे स्तर में जाती है, फिर दूसरी वाली दूसरे स्तर में जाती है और पहली वाली पहले स्तर में रहती है। फिर कुछ समय बीतता है, फिर नई मिट्टियां आती हैं और अब जो सबसे पहले वाली परत थी वह सबसे नीचे चली जाती है, और फिर इसी तरह से वह डी हॉरिजॉन का निर्माण करती है। इसके बाद सी हॉरिजॉन, फिर बी हॉरिजॉन और तब ए हॉरिजॉन का निर्माण होता है। मीन्स ए हॉरिजॉन हमेशा एक नवनिर्मित मिट्टी होती है और इसलिए वह हमारे लिए अधिक कारगर या उपयोगी साबित होती है। स्टूडेंट्स, वी कैन गेट मोर नॉलेज अबाउट लेयर्स ऑफ सॉइल बाय आवर बुक्स, सो लेट्स स्टडी बुक एंड ट्राई टू गेट मोर नॉलेज। लेयर्स ऑफ सॉइल. Soil is made up of different layers. These layers contain particles of different sizes. Let us perform an activity to make a rough estimate of the amount of different particles present in different layers of soil. Students, just you have seen that how the layers of soil are formed in our environment, and here an activity given कि how can we find different layer of soil. To do it, just we have to take a glass container and we will put some soil in it. After that, we just fill 3/4 of the container with clean water, stir the mixture well and secure the lid firmly and leave it for 3 to 4 days. And after these days, we find that different sized particle of the soil are just settle on one to another layers, and this shows that some humus also present in the mixture which are just floating on the upper part of the layer. यानी ह्यूमस क्या है? वह मरे हुए पौधों के अंश हैं, जंतुओं के अंश हैं जो मिट्टियों को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। ये पानी से हल्के होते हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जबकि अगर हम उस लेयर को अच्छी तरह से निरीक्षण करें तो हम ये पाएंगे कि
जो सबसे बड़े टुकड़े हैं रॉक के वह सबसे नीचे आते हैं, फिर उससे बड़े टुकड़े, फिर उससे बड़े टुकड़े, फिर जो सबसे बड़े टुकड़े हैं वह सबसे नीचे सेटल होते हैं, फिर उससे छोटे टुकड़े उसके ऊपर आते हैं जो सिल्ट होते हैं, फिर उसके ऊपर बालू के कण आते हैं, फिर मिट्टियों की परत आती है, फिर उसके ऊपर यह ह्यूमस आ जाते हैं। सो द डेड एंड रॉटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमस। लेट अस नाउ स्टडी about the different layers of soil. Topsoil or a horizon. The topmost layer of the soil is called a horizon. The specific of a horizon are given as it is rich in humus, it is rich in minerals needed by plants for their growth, it is soft, it is porous, it is darker than other layers and it can retain more water. Since it is more porous and it is just full of humus as well as it is soft, so the water retaining capacity is मैक्सिमम देन दी अदर लेयर्स ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा भी, मैंने आपको बताया कि यह ही वह परत है जहाँ पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि यह काफ़ी सॉफ्ट होता है और मिनरल्स से रिच होता है, इसलिए इस पार्ट में पौधों की उपज अच्छी होती है। ए होरिजन is the home of many living organisms like insects and worms. The roots of plants grow in this layer of soil. Now subsoil or B horizon. B horizon lies just below the topsoil. तो चूंकि A horizon क्या है कि वह अभी नए मिट्टियों का परत है और जो उसके पहले मिट्टियाँ आई रहती हैं वह उसके नीचे बी होरिजन में चली जाती हैं और इसलिए यह टॉप सॉइल के जस्ट बाद का जो लेयर होता है वह बी होरिजन या सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। इट हैज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू a horizon, since these particles of soil are slight harder than the top soil and so it is not easy to make home for animals. It contains comparatively less amount of humus, it is rich in minerals, it is generally harder and more compact than top soil. It is lighter in color because of presence of less amount of humus. जाहिर सी बात है कि ह्यूमस मिट्टियों के रंग को गहरा करेंगे, उसमें मिनरल्स की मात्रा बढ़ाएंगे, साथ में जो नए रॉक के टुकड़े होंगे वह भी इस परत में आकर और हार्डर हो जाएंगे, जबकि ए वाले में ऐसा नहीं होता है और फिर धीरे धीरे यही परतें और नीचे चलती चली जाती हैं। एंड देन अपीयर्स सी होरिजन। सी होरिजन जस्ट लाइंग बिलो द बी होरिजन। It is made up of a small lumps of rocks. These rocks have cracked in them formed due to weathering of bedrock. क्योंकि bedrock के ब्रेक होने से इन रॉक का निर्माण होता है, इसलिए इसमें थोड़े क्रैकिंग हो सकते हैं। यह बी होरिजन के ठीक नीचे होता है, मतलब पहले बी होरिजन
होता है उसके पहले ए होरिजन होता है और फिर ऊपर जब प्रेशर उनके ऊपर आता है तो ये उसके नीचे चले आते हैं और फिर सी होरिजन का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये परत पहले 2 परतों से अधिक कठोर होता है और इस कारण यहाँ जो मिट्टियाँ होती हैं वह बड़े बड़े टुकड़ों में बदल जाती हैं। जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा होगा, जब आप वहाँ क्या देखते हो कि अगर कोई मशीन मिट्टियों को खोद रही है तो पहले तो बहुत हल्की मिट्टियाँ बाहर निकलती हैं, फिर उससे अधिक मोटी मिट्टियाँ बाहर आती हैं, इसके बाद बड़े बड़े मिट्टियों के टुकड़े बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और यह अधिक पथरीले होते हैं। आफ्टर दैट कम्स बेड रॉक। बेड रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट रॉक। दिस पेरेंट रॉक produces swell over a long period of time. As you have told earlier about it, the layers of swell are formed due to regular pressure and temperature given by the layers of air, different activities done by animals, as well as some natural processes, and then they are just make one layer to another. तो इस तरह से जो सबसे नीचे की परत होती है वो अत्यधिक कठोर होती है और यह परत नन पोरसी होता है, यानी यहाँ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और इसलिए ये स्तर पेरेंट रॉक कहलाएगा। The parent rock is very hard. चूंकि यह क्षेत्र पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह क्षेत्र काफी कठोर होता है। About weathering of rocks, even I have told in previous class, but here once again we see that the breaking down of rocks into small particles by the action of water and wind is called weathering. यानी पानी और हवा के लगातार कार्य करने से जो रॉक के टुकड़े होते हैं वह टूटते हैं और रॉक यानी चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया ही वेदरिंग या भंजन कहा जा सकता है। The children, in the next video we shall get knowledge about component of swell. Till then, thank you.